Good morning, students. Today we will start our new chapter. It means chapter 11, entrepreneurship. Okay, let me explain you. Spelling of entrepreneurship is just like a entrepreneurship, है ना? But it has changed nowadays. It means the pronunciation of this word has changed like entrepreneurship. Okay, पहले इसको entrepreneurship बोला जाता था, लेकिन अब इसका जो pronunciation है वो change हो गया है and becomes entrepreneurship. Okay, so let me explain you what is meaning by entrepreneurship. In general sense, the capacity of unique achievements, risk taking and facing uncertainties is called enterprise. Okay, it means the person who are going to take the risk, those who are going to make investment in business, it is called like a enterprise or it is called a entrepreneurship. Enterprise वो होता है जिसमें एक person अपना पैसा, इट मीन्स द मनी, टाइम और एनर्जी, हर चीज को इन्वेस्ट करता है और उसे ही एंटरप्राइज कहा जाता है. मतलब एंटरप्राइज में एक पर्सन जो है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी सब कुछ इन्वेस्ट करता है एंड इट इज कॉल्ड एंटरप्राइज. ओके, एंड द पर्सन हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. उसको क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर. जो पर्सन अपने टाइम, अपनी मनी और अपनी एनर्जी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. और जब वो उसमें एक्टिविटीज करता है, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, so the persons or group of persons having such abilities are called entrepreneurs. It means those person who having ability to invest the money, their energy and their time, it is called a entrepreneur. जिसमें ये सारी एबिलिटीज होती है, जो बहुत ही रिस्क बेयर कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर. ओके, when an entrepreneur realizes his ability or capacity and makes the practical use of establishes new business unit, है ना? It means the person who are going to know about his ability and he is going to start the new business or enterprise is called innovation. Okay, it means the person who is investing his time, money and energy as well as he is ready to take any type of risk. जो कोई भी रिस्क बेयर करने के लिए रेडी होता है, वही एक तरह से क्या करता है? इनोवेशन कर सकता है. इट मीन्स मेकिंग समथिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग product. So let me explain you what is mean by invention and innovation. Invention, it means making some new product and innovation, it means मेकिंग सम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, है ना? मतलब जब हम कोई नई चीज बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? इन्वेंशन. ओके, और जब हम किसी बनी हुई चीज में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इनोवेशन. ओके, सो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस आर गिवन हियर, बट वी आर गोइंग थ्रू सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू स्टैब्लिशिंग बिजनेस एंड एंटरप्राइज, है ना? मतलब जब हम कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी नया एंटरप्राइज स्टैब्लिश करते हैं, in this number one is like according to Professor Uday Parikh, entrepreneurship refers to the general trend of setting up new enterprise in a society, है ना? मतलब सोसाइटी में कोई भी नया एंटरप्राइज शुरू करना, नया बिजनेस शुरू करना, इट इज कॉल्ड अ entrepreneurship. Then number second definition is related to functions and activities. Okay, it means in which persons are going to do some functions and activities related to the business, in which number second, according to Richman and Koppen, entrepreneurship implies more creative, external or open system. Okay, it means they are doing something creative. It involves innovation. It means making something change in the existing product. Risk bearing. It means he should be able to take risk. And relatively dynamic leadership. It means as an entrepreneur, I have to do some लीडरशिप वर्क ऑल्सो, है ना? मतलब अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मुझे लीडरशिप के भी वर्क करने होते हैं. ओके, देन नंबर थर्ड इज definition related to organization and combination. Organization, it means to run the organization. If I am entrepreneur, then I have to run some business. It means I have to run some organization. And combination, it means I have to combine some different things, in which I am going to explain you the first definition. In the words of H.W. Johnson, Entrepreneurship is a composite of three basic elements. Composite मतलब तीन चीजों को मिलाकर बनाई है. Inventions, it means making some new thing.
इनोवेशन इट मीन्स चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट में है उसमें कुछ चेंजेस करना. एंड एडेप्टेशन इट मीन्स वी हैव टू एडॉप्ट समथिंग न्यू, है ना, किसी चीज को, मतलब एज पर चेंजिंग एरा वी हैव टू अडॉप्ट समथिंग न्यू, मतलब ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर कुछ नया मॉडर्न को क्या करना, एक्सेप्ट करना है, या उस मॉडर्नाइजेशन को अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना, इम्प्लीमेंट करना. ओके, देन नंबर 4 इज डेफिनेशंस रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग. एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव टू टेक सम डिसीजन. इट मीन्स इन ईच एंड एवरी स्टेप आई हैव टू मेक सम डिसीजन, है ना, मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा. लाइक नंबर 1 डेफिनेशन इज गिवन हियर. In the words of Lamb, entrepreneurship is that form of social decision making performed by economic innovations, है ना. It means the things which are related to money, which are economical, है ना, मतलब जो पैसे से related होता है. In this sense, if we are going to take any type of decision, it is called entrepreneurship. Okay. Then number 5 is definitions related to innovations, है ना. Innovation it means making something changes in existing product. Already जो product है उसमें क्या करना, कुछ changes लाना. In which number 1 is according to Professor Rao and Mehta, entrepreneurship can be described as creative. It means doing some creative thing in the existing product, and innovative response to the environment. It means we have to make some innovation in the existing product, keep in mind the changing environment, है ना, मतलब जो environment में जो changes हो रहे हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने existing products में क्या करना, changes करना. It is called innovation. Okay, so thus entrepreneurship is the activity to link the business with the society and the environment. It means we have to do such type of activities which are related to the, or which are linked to the society and the environment. It means in business we have to do the activities which are related to the society and environment. It means हमें जब भी हम business करते हैं तो उस business को हमें किससे link करना होता है, society से और environment से. It means we have to do such type of activities which are we can say gainful, or which will be fruitful for the society, and it will not harm the environment. हमें कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या जो क्या हो, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो. This is the capability to search innovations and opportunities in the business. It means as an entrepreneur, I have to search the opportunities in the business, है ना, कि मुझे business के through या business में opportunities क्या करनी है, search करनी है, by which I can earn the profit. मैं अपने profit, मतलब मैं profit earn कर सकूँ, and I can run my business easily. In the context of social values, it means I have to keep in mind the social values also, है ना. ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे सोसाइटी की social values को क्या हो, harm हो. To make social innovations, it means I am doing innovation for the society and to provide dynamic leadership to the business. As an entrepreneur, मैं अपने business को क्या provide कर रही हूँ, leadership, है ना. Entrepreneur एक तरह से क्या होता है, leader होता है जो अपने बिजनेस को क्या करता है, लीड करता है. So meaning of entrepreneurship in a view, it may be shown by following diagram, and you have to draw this diagram in your notebook. Okay, it is a very important diagram given here. Then there are some characteristics of or nature of entrepreneurship is given here. It means if in examination the question may be like characteristics of entrepreneurship or maybe nature of entrepreneurship, and the answer of both questions are same. Okay, so the first characteristic of entrepreneurship is given here, risk bearing spirit, है ना. spirit मतलब क्या होता है, शक्ति, है ना, जिसको हम कह सकते हैं. इट मीन्स एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ रिस्क बेयरिंग स्पिरिट. जिस पर्सन में रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती है वो कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता, और ही विल नॉट बी अ एंटरप्रेन्योर. वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता. इट मीन्स फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप अ पर्सन मस्ट हैव रिस्क बेयरिंग स्पिरिट. उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी रिस्क को क्या कर सके, बेयर कर सके, उसको फेस कर सके. सो like it is the spirit of capacity of bearing risk,
Several types of risk exist in the business. It means if we are running the business, we have to face some type of risk like right from its setting to its operation. Operation मतलब जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम ऑपरेट करना शुरू करते हैं, at that moment risk started. Okay, like presentation of new production. If we are going to make some new product, it means we have to face the risk in starting new product. Or uncertainty of market, we don't know about the market situation. There are so many uncertainties we have to face in the market. Fluctuation in prices, it may be possible that the increase and decrease in the prices. It means there is a possibility in the fluctuation of the prices. Changes in the desire, it means there may be changes in the desire of the customer. Customer की इच्छाएं, desires change होती रहती है according to the environment and fashion of the customers. It means customer जो है they always want to take a new fashion product, है ना. It means fashions always changes, है ना, वो हमेशा change होती रहती है and customer always having a demand of the new fashion product. Problems in having timely and adequate supply, it means it may be possibility there is a inadequacy or inadequacy in the supply of the product कि हम जो product बना रहे हैं और the production है ना, और in the production कि हम जो भी product बना रहे हैं, sometimes we have to face problems in the production process or sometimes we have to face the problems in the supply process, and this is the risk for the business. Increasing competition, it means we have to face the competition in the market. And failure of innovation, etc. Failure in innovation, it means sometimes if we are making changes in the existing products, customers are not going to adopt that particular changes. मतलब हम सोचते हैं कि if we are making some changes in the product तो हो सकता है कि customer will like it, but sometimes it not happens, नहीं होता है ऐसा, और customer जो है innovation को क्या करते हैं, फेलियर कर देते हैं. इट मीन्स दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब वो जो चेंजेस हम प्रोडक्ट में करते हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो दीज आर द रिस्क एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस. मतलब इस तरह की रिस्क जो है हर एक बिजनेसमैन को क्या करनी होती है, फेस करनी होती है. देन नंबर सेकंड इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज. व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, तो नंबर सेकंड इज कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज. मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, ही ऑलवेज सर्चिंग द अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस. वो अपने बिजनेस में हमेशा नई से नई अपॉर्चुनिटीज क्या करता है, सर्च करता है. मतलब ही ऑलवेज वांट्स टू सर्च समथिंग न्यू और द थिंग्स विच मेक्स अ गुड प्रॉफिट टू हिम, जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे. लाइक नंबर 1, अपॉर्चुनिटी इन अनफुलफिल्ड रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, है ना. अनफुलफिल्ड रिक्वायरमेंट, इट मीन्स जो लोग होते हैं उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल नहीं हुई है, और एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अपेक्षाएं, है ना. सो द कस्टमर्स हैविंग सो मैनी डिजायर, सो मेनी रिक्वायरमेंट्स एंड एस्पिरेशन, सो वी हैव टू फुलफिल दैट. मतलब हमें ये चीजें ढूंढनी है कि वहां पर कस्टमर की कौन सी ऐसी डिजायर्स हैं या ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, तो उसको सर्च आउट करके हमें उस तरह का प्रोडक्ट क्या होता है, बनाना होता है, बाय विच वी कैन मेक सेटिस्फैक्शन और by which we can make satisfied to our customer. Then number 2, change in enterprising circumstances, test, fashions and law, है ना. मतलब कस्टमर का जो टेस्ट है, जो फैशन है ना, जो उसने वो जो अडॉप्ट करना चाहता है, और लॉ, इट मीन्स अ बिजनेस लॉ. उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक तरह से हमें अपने प्रोडक्ट को क्या होता है, बनाना होता है, ताकि वी कैन क्रिएट द डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट. Then number 3, opportunity within solution of the problem. Sometimes if we are going to solve the problems, we are getting some opportunities, है ना. We get some opportunities. मतलब जब हम अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च कर रहे होते हैं, तो उसके जगह हमें बहुत बार कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है. तो मतलब इट मीन्स से दैट हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को सर्च आउट करते हुए भी हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी इन इन्वेंशन, है ना. इट मीन्स मेकिंग सम न्यू थिंग, मेकिंग सम न्यू प्रोडक्ट. तो जब हम इन्वेंशन करते हैं कोई ना कोई चीज का, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है.
Then number 5th, opportunity in changes in environment. It means if any changes are taken place in environment, प्रोडक्ट में कोई चेंज हो रहा है, आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड द साइज एंड नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर के लिए क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटीज का काम करती है. इट मीन्स एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव टू सर्च द अपॉर्चुनिटी इन दिस थिंग्स, है ना, इन दिस थिंग्स. मतलब ये जो भी थिंग्स हैं, आइडियोलॉजी है या साइज एंड नेचर ऑफ द पॉपुलेशन है, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं या एनवायरमेंट में जो भी चेंज होता है, प्रोडक्ट में जो चेंज होता है या टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, इन सारी चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं. देन नंबर 3rd, एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज और बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी, है ना. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह से क्या है, बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी है. कैसे? बिकॉज वी आर डूइंग द बिजनेस इन एंटरप्रेन्योरशिप. हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस कर रहे हैं. Because it provides motivation to the interest-taking person or the enterprise of make business imagination, है ना. It means because of entrepreneurship, we are getting opportunity to start any business. Formula plan, it means by the entrepreneurship we can formulate the plan. हम plan को formulate करते हैं to establish the industries, या हम plan को implement करते हैं business को या industries को establish करने में. Besides, it motivates the person to become entrepreneur, है ना. It means if we are getting some opportunity, if we having a positive, favorable environment to start any business, we will take interest to start the business. Hence, several new business enterprises are established as a result of entrepreneurship. So, because of entrepreneurship, new enterprises are going to start, है ना. Because of entrepreneurship क्या होता है, नई बिजनेस, नए इंडस्ट्रीज, नई एंटरप्राइजेस क्या होती है, स्टार्ट होती हैं. देन नंबर 4, सॉरी, it is based on principles. It means there are some principles of business, of entrepreneurship, and we have to follow these particular principles, not an intuition, है ना. इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, गैस करना, है ना. So we can say for starting any business, for starting any organization, we have to follow some principles. It will not run only by the intuitions. अनुमान लगा के गैस करके हम कोई चीज नहीं कर सकते. वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं, हमें उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है. लाइक entrepreneurship is a spirit based on certain principle and not the spirit generated just by the intuition of any person. It is based on principles and thoughts of economic. So there are so many thoughts are given here, or there are so many thoughts which are related to these subjects. We can say economics, psychology, statistics and sociology, है ना. It means the principles are made by these by the help of these subjects, and we have to follow these principles. Number 5, it is a result of various changes. मतलब entrepreneurship कहाँ से आता है, by various changes, by the result of various changes. हम जब भी कोई चेंजेस करते हैं, उस चेंजेस का जो रिजल्ट होता है, एक तरह से वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, लाइक ह्यूमन बीइंग्स वांट समथिंग चेंज. हम हमेशा कुछ न कुछ नया चाहते हैं बाय नेचर. हैंस एंटरप्रेन्योरशिप रिवील्स द टेंडेंसी ऑफ चेंज अमंग द एंटरप्रेन्योर्स, है ना. इट मीन्स एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज make some changes in the existing product to satisfy the needs of the customers. Hence, it is not just an event. It is not an event, okay? Rather, it is the result of following changes. It means the following changes has to be applied in the entrepreneurship, by which we are getting some result. Like we can say, government policies, tenets, education and social values, okay? Social, political, scientific and technical conditions, science, population, cultural and psychological events, etc. है ना. It means if some changes are comes in these following terms, then there may be entrepreneurship. Okay. The approach, thinking and systems of the entrepreneurs are continuously changing. मतलब उनकी जो भी थिंकिंग है, जो भी उनके सिस्टम्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, they always changes due to aforesaid changes, because there are changes in the given points here.
and entrepreneurial tendencies are developing in the society, है ना. So we can say because of changes in these points, entrepreneurship becomes come into existence, है ना. और we can say the persons are taking interest to be a entrepreneur. इन सारी चीजों में जैसे जैसे चेंजेस आता जाता है उसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर जो है उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है, या जो हम कहते हैं कि जो एस्पिरेशन है या जो डिजायर है वो क्या होती है, मोटिवेट होती जाती है. ओके, देन नंबर 6, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस, है ना. एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक अ प्रैक्टिस. ये ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन किया और दूसरे दिन उसको छोड़ दिया. आप इसको जितना करते जाओगे, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. आप इसको जितना अच्छे से करोगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते जाओगे. जैसे सिंस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना. आप जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप उसमें क्या होते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे. मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना. जब एक इंसान बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो उस काम में क्या करता जाता है, परफेक्ट होता जाता है. जैसे आप किसी चीज को अगर बार बार करोगे तो उसमें आप क्या होते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे. देन द पर्सन gain more and more entrepreneurship by making more and more practices, है ना. जितनी वो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो परफेक्ट होता जाएगा. One becomes fast by performing enterprising activities. आप उस वर्क में फास्ट होते जाओगे. And also attains high achievements through enterprising practices. It means you can achieve at a higher level by doing a practice. So number 7 is creative activity. Entrepreneurship is like a creative activity because it provides motivation to execute new thoughts. By the entrepreneurship, we can execute our new thoughts in the business. मतलब हम अपने न्यू थॉट्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. By making search of various new opportunities, नई से नई अपॉर्चुनिटी सर्च करके, एंड बाय अंडरटेकिंग क्रिएटिव थिंकिंग, है ना. मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको क्या करते हैं, हम एक तरह से अप्लाई करते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर. बिसाइड्स इट, creative function is performed by making changes in the resources of the production. It means we have to make some changes in the resources of the production and the size, color, design of the goods. We have to change the size, color and design of the goods to attract the customer. And as a result, capital formation. It means by the entrepreneurship we are going to form a capital. मतलब जो पैसा वेस्ट पड़ा रहता है उस पैसे को हम एक तरह से क्या करते हैं, यूज में लेते हैं बाय फॉर्मुलेटिंग द कैपिटल. एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज गो ऑन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री. बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है वो क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं. हम उसको करते हैं बाय विच मैनी पर्सन्स आर गेटिंग सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ओके, देन नंबर 8, इट इज द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट और एम्बिशन, है ना. एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, किसी भी पर्सन का जो भी एम्बिशन है या उसका जो भी अचीवमेंट है वो एक तरह से क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. किसी भी पर्सन का हाई अचीवमेंट और एम्बिशन जो होता है वो एक तरह से क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. मतलब वो अपने जितने भी एम्बिशंस हैं उसको सच में उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके जो भी एम्बिशंस है उसको कंप्लीट करता है, उसके ऊपर वर्कआउट करता है और वो कुछ ना कुछ अचीव करता है. तो द रिजल्ट ऑफ द अचीवमेंट इट इज कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सॉरी. लाइक एवरी एंटरप्रेन्योर बिलीव्स इन अचीविंग रिजल्ट, है ना. मतलब हर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो रिजल्ट अचीव करना चाहता है थ्रू देयर एफर्ट्स एंड लेबर. इट मीन्स थ्रू देयर एफर्ट्स एंड लेबर. वो अपनी जो मेहनत है, अपनी जो भी एफर्ट्स है उसको पूरा लगाता है. लेबर मतलब एक तरह से वर्कआउट करना. They pay attention to target oriented practices. It means they have to fix the target and up to that target they have to do their work. Up to that target they have to emphasize their energy, their efforts. Good and strong plans. They have to make a good and strong plans and decisions so as to achieve good and desired result. It means for getting a good and desired results they have to do their best efforts. Okay. Then number 9, professional activity. Entrepreneurship is like a professional activity. Professional, it means
they need some प्रोफेशनल डिग्री और दे नीड सम प्रोफेशनल एबिलिटी. जब तक एक पर्सन में प्रोफेशनल एबिलिटी नहीं होती है ना, तो इट मीन्स हाउ टू डू द वर्क, तब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता. लाइक वी कैन से इन मॉडर्न एज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ क्वालिटी बाय बर्थ, है ना, इट इज नॉट अ क्वालिटी बाय बर्थ. पहले के जमाने में ऐसा होता था कि बाय बर्थ जो होता था एक पर्सन में एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी होती थी, बट नाउ इट इज वी कैन अचीव दिस एबिलिटी बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. जो हमने लीडरशिप वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था कि बाय बर्थ ही हर एक इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता. ही कैन डेवलप हिज एबिलिटी बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. वो एजुकेशन और ट्रेनिंग लेकर भी अपनी एबिलिटी को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, उसको अच्छे से अचीव कर सकता है उन चीजों को. सो बट इट इज एन अर्न्ड टैलेंट. Reason being that if a person intends to gain this quality, it means if I want to gain this quality, it means which quality? Entrepreneurship. He may participate in the programs organized by various institutions. So nowadays there are so many institutions, there are so many organizations who are going to organize some programs in which they are giving some training and education to the person. To that it means how to become a entrepreneur. कि आप एक entrepreneur कैसे बन सकते हो, उसके लिए कई सेमिनार्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. Hence it is developing as a profession. So it is developing as a profession. मतलब entrepreneurship एक तरह से किस तरह से डेवलप हो रहा है ये as a profession due to following reasons. Number 1, the capability of the entrepreneur is being enhanced and developed. मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है entrepreneur की कैपेसिटी को, उसकी एबिलिटी को, by providing them required education and training. मतलब किसी भी पर्सन को अच्छे से अगर हम एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं तो he will become a entrepreneur. The government is starting several schemes to encourage the interest and inclusion among the entrepreneurs, है ना. It means government also implement some policies and they are going to make some plans to motivate the entrepreneur for developing entrepreneurship. It means governments are organizing some seminars, they are giving proper education and training to the person by which we can increase the entrepreneurshipness, है ना. मतलब entrepreneurship को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी कई तरह की प्लान्स और पॉलिसीज को अप्लाई कर रही है nowadays. Okay, then number 10 is knowledge based practice, है ना. It is knowledge based. It means for become a good entrepreneur, for become a successful entrepreneur, we should have a knowledge about the entrepreneurship. हम बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं. Drucker writes, entrepreneurship is neither a science nor an art, it is a practice. मतलब ये कोई साइंस या कोई आर्ट नहीं है जिसको सीखा जा सके, it is a practice. मतलब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आप वर्क करोगे, जितना आप नॉलेज गेन करोगे बाहर से, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतने ही आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. It has a knowledge base because he uses his experience for high achievements. It means for achieving the high or for the high achievements we should uses our experience, है ना. जिससे अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी हाई अचीवमेंट्स हैं तो उन अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए आई हैव टू यूज माई एक्सपीरियंस. जब तक मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को यूज नहीं करूंगी, मैं एक अच्छी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती. ओके, then number 11 is environment oriented activity. It is environment oriented activity like and entrepreneurs always work in open environment of fast changes linked with. It means as an entrepreneur I have to run my organization by facing the challenges, by facing the changes which are creating in the environment because of economic, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना. मतलब हम ये जानते हैं कि जितने भी एनवायरनमेंट है, इन सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं एंड आई शुड हैव द एबिलिटी टू टैकल ऑल दिस चेंजेस इन द बिजनेस. मतलब ये सारे चेंजेस जो होते हैं, इन सारे चेंजेस को टैकल करने की, इनको फेस करने की एबिलिटी मुझ में होनी चाहिए. बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम एंटरप्रेन्योर, देन आई हैव टू फेस ऑल दीज चेंजेस. मुझे इन सारे चेंजेस को फेस करना है और इनको ध्यान में रखते हुए ही मुझे अपने बिजनेस को क्या करना है, रन करना है. या मैं जो भी अपने प्लान्स करती हूँ या जो भी मैं डिसीजन मेकिंग करती हूँ, उन सब में मुझे इन सारे चेंजेस को क्या करना है, ध्यान में रखना है. ओके,
So they live in the age of discontinuity. They confront shattering and accelerating changes, a change paced by constant innovations, है ना. मतलब constant innovations हो रहे हैं और इन constant innovations को मुझे क्या करना है, एक तरह से मतलब फेस करना है, और मुझे भी जो इनोवेशंस करने हैं उन सब में भी मुझे इन सारे चेंजेस को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा. इट मीन्स फॉर मेकिंग एनी इनोवेशन आई हैव टू कीप इन माइंड द चेंजेस विच आर exist in the environmental, in the changing environment like political, social, cultural and physical, economical, है ना. इन सारे इनमें जो भी चेंजेस होते हैं इन सबको मुझे ध्यान में रखते हुए एक तरह से अपने इनोवेशंस को क्या करना है, क्रिएट करना है. देन नंबर 12 इज इसेंशियल इन ऑल बिजनेस एंड इकोनॉमीज, है ना. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वली इसेंशियल. एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत सब जगह है इक्वली फॉर ऑल बिजनेस, चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो, इकोनॉमीज डेवलप्ड और डेवलपिंग, है ना. चाहे वो कम इन्वेस्टमेंट में किया हुआ बिजनेस हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, मतलब ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका है, या डेवलपिंग जो डेवलप होने की क्या है, प्रोसेस में है. इन सब जगह हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है. इट इज इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस. मतलब हर बिजनेस की सर्वाइवल के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, नेसेसरी है. एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज, है ना. सभी तरह की सोसाइटीज में, सभी तरह की इकोनॉमीज में इसकी जरूरत है. Thus, it is evident that entrepreneurship is equally important for all business and economies. ये सबके लिए क्या है, equally important है, चाहे वो big हो, चाहे small हो, चाहे वो developed हो, चाहे वो developing हो. Then number 13 is universal activity. It means entrepreneurship is a universal activity because it is adopted by whole world, है ना. ये सारी दुनिया ने इसको क्या किया है, adopt किया है. So we can say लाइक एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, मेडिकल, पॉलिटिक्स, आर्मी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, है ना. इन सभी जगहों पर एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है. बिसाइड इट इज इक्वली रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो कोई भी बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज हो, रिस्क बेयरिंग हो, इनोवेशन हो, लीडरशिप, इन सभी चीजों में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है. Then number 14 is a lifestyle, है ना. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल. मतलब एक सिस्टम में चलता है, इसके लिए हमें एक सिस्टम को फॉलो करना होता है. बिकॉज एवरी पर्सन हैज टू इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव टू अचीव गोल्स इन लाइफ, है ना. हमारी लाइफ में जो भी गोल्स हैं, हमारी लाइफ के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें हर तरह की इमेजिनेशन और क्रिएटिवनेस को क्या करना होता है, अडॉप्ट करना होता है. सो make right, being an entrepreneur is more than a job or a career, it is a lifestyle. ये एक तरह का कोई जॉब नहीं है, करियर नहीं है, बल्कि एक तरह का ये लाइफस्टाइल है. इट मीन्स एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव टू अडॉप्ट ऑल थिंग्स इन माई लाइफ. मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको मुझे मेरी लाइफ में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना होगा. देन नंबर 15 इज प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड रोल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. एज अ एंटरप्रेन्योर मैं क्या करती हूँ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करती हूँ और मेरा जो रोल है वो भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. लाइक वी कैन से entrepreneurship is the process of personality development and role transformation. Since he adopts any new ideas, it means as an entrepreneur I have to adopt the new ideas, new activity I have to do or new practice I have to do. Okay, he goes on doing so continuously. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन किया फिर उसको छोड़ दिया. I have to do these things continuously till he is not identified as an innovator, है ना. मतलब जब तक मुझे लगता नहीं है कि मैंने अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्ट को पा लिया है, उसको मैंने अचीव कर लिया है, तब तक मुझे इन सारी चीजों को कंटिन्यूसली करना है. That is why Professor Parikh said an entrepreneur adopts not only any work and business but also transfers the personality. मतलब जब भी मैं कोई बिजनेस करती हूँ तो एक तरह से मैं खाली वो बिजनेस रन नहीं कर रही हूँ, बल्कि उसके साथ ही मैं कुछ चीजों को अडॉप्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, उसको क्या कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. बाय दैट अ न्यू आइडेंटिफिकेशन इज स्टैब्लिश्ड, जिसकी वजह से एक न्यू आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बनता जाता है. देन नंबर 16 इज रिवॉर्ड इम्प्लिसिट इन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना.
मतलब हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, इट मीन्स एज अ एंटरप्रेन्योर मैं जो भी एफर्ट्स, अपनी जो भी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरी मनी जो भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उसका रिजल्ट एक तरह से क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, लाइक reward is implicit in its because when any entrepreneur makes investment of efforts, मतलब मैं जब भी अपने efforts को invest कर रही हूँ, टाइम और मनी को यूज मतलब इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी डिवोशन पॉसिबिलिटी सर्टनली एग्जिस्ट फॉर गेटिंग द रिवॉर्ड. मतलब मैं अपना जो भी चीज इन्वेस्ट कर रही हूँ एक तरह से वो मैं किसके लिए कर रही हूँ, फॉर गेटिंग द रिवॉर्ड. हाउएवर दिस रिवॉर्ड मे बी डिलेड, है ना, समटाइम्स इट मे बी डिलेड. हम बहुत बार ये होता है कि हम जब मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें उसका रिजल्ट या उसका रिवॉर्ड जो है वो क्या होता है, उसी वक्त नहीं मिलता है. वी हैव टू वेट समटाइम्स, हमें उसके लिए इंतजार करना होता है, बट अल्टीमेटली वी विल गेट इट. हम उसको क्या करते हैं, पा जाते हैं. इट मीन्स वो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो. सो वी कैन से एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव टू इन्वेस्ट माई टाइम, माई मनी, माई एनर्जी एंड समटाइम्स इट मे बी डिलेड फॉर गेटिंग द रिवॉर्ड. मतलब उस रिवॉर्ड को पाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए क्या करना होता है, इंतजार करना होता है. Then number 17 is innovation, है ना. By the entrepreneurship I am doing some innovation, मैं एक तरह से इनोवेशन कर रही हूँ. So Drucker says इनोवेशन इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, जिसे हम जब म्यूजिक प्ले करते हैं तो इट मीन्स वी हैव टू प्ले सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना पड़ता है तभी हम म्यूजिक मतलब क्रिएट करते हैं. सेम हियर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेशन एक तरह से क्या है, इंस्ट्रूमेंट है. एंटरप्रेन्योर इज अ चेंज एजेंट, है ना, मतलब वो क्या करता है, एक तरह से किसी चीजों को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है. देन नंबर 18 इज different types of entrepreneurship, है ना. There are so many different types of entrepreneurship like private, public, government, centralized and decentralized, small and large, routine and new type, and urban and rural entrepreneurship, है ना. So there are different types of entrepreneurship are given here. We completed the characteristics of entrepreneurship, and in next lecture we will discuss about the importance of entrepreneurship. Thank you.